Hello everyone, welcome to my channel, our exam study notes. And today we are going to discuss the topic the cell. The discovery of cell and cellular structure of living beings is associated with the invention of compound microscope, which could magnify objects manifold. So the earliest picture of cellular structure was presented by Robert Hooke in 1665 in paper texture of cork by means of magnifying lenses in micrographia. Robert Hooke observed tiny honeycomb cavities or hollow spaces in thin slit sections of cork. To these small spaces he used the term cell because of their resemblance to the cells in a honeycomb. The term cell is derived from Greek word kaitos, means cell, or Latin word "cella", which means hollow space. However, Hooke could not observe the contents of these boxes of cells which he had seen in the cork. Later on, he added that the cells are filled with natural juices. He presumed that this juice could pass from one cell to other. So this was about Robert Hooke and his study about the cell. तो अब हम आते हैं सेल थ्योरी में. Cell theory or cell doctrine was formulated in 1838 by German botanist M.J. Schleiden for plants. It was extended to animals by German anatomist Theodor Schwann in 1839. According to cell theory, all living organisms are sum of total activities and interaction of its cells. और हम इसको ये भी कह सकते हैं all living organisms are composed of cells and new cells arise from pre-existing cells. इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग इसलिए हैं क्योंकि उनके सेल में जो है इंटरेक्शन हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं. और दूसरे लाइन का मतलब ये हो गया कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, फंडामेंटल यूनिट सेल से बने हैं. और जो न्यू सेल है वो कहाँ से बनेगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल फॉर्म होती है. The main contribution for cell theory are Robert Brown discovered nucleus in 1831, Demotier studied cell division in algae, von Mohl described cell division in animal cells, Purkinje and von Mohl described cell cytoplasm and stabilized its importance in cell and cellular activities. Robert Virchow in 1835 expressed his famous amorphism omnis cellulae acellula, which means all cells arise from pre-existing cells. Then Fleming stabilized that cells ensure the continuity between the existing generation and the next generation by cell division. So these all scientists contributed for the development of modern cell theory. इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे कि वायरस. Some exceptions to cell theories are acellular protozoa, the microbes, bacteria, and the green algae, which does not form a distinct nucleus, and especially the viruses, which are not complete cells. हम वायरस को क्या कहते हैं? Acellular. They are not true cell. Why? Because viruses has these three important properties. First, virus has a central core of nucleic acid, which is DNA or either RNA, enclosed in protein covering. Bacteriophage, the virus
that infects the bacterial cells are bacteriophages. तो ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वायरस का एक डायग्राम है जो कि बैक्टीरियोफेज है. दे डोंट हैव सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स, यानी कि उन्हें उन्हें अपना सिस्टम चलाने के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती ही होती है. एंड दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड आउटसाइड द होस्ट. They are in the form of crystals. Outside the host, they are in the form of crystals. फिर इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है essential features and significance of cell theory. What is the significance of cell theory and its features? तो features cell theory के ये हैं कि cells are fundamental units of structure and function in all living organisms. It means all living organisms are composed of cell or cells. Cells are unit of heredity. New cells arise from pre-existing cells only. The activities of an organism are the outcome of the activities of its constituent cells. Each cell has its own, in addition to its integrated role in multicellular organisms. Thus, a cell is the smallest unit of life. It is a unit of protoplasm surrounded by plasma membrane, consists of nucleus in the central and cytoplasm, cytosol with cell organelles. ये थे इसके essential features. The next topic is cytology and cell biology. The term cytology is taken from Greek word kaitos, means hollow, vessel or cell, plus logos, which means discourse. Cytology term was used in 18th century for the microscopic study of the cell. It provides the detailed morphology of various cell organelles. But now, this term has been replaced by cell biology, which includes the structural, genetical, physiological, biochemical, or biophysical studies of cells, and also attempts to explain the phenomena of metabolism, biosynthesis, variations, mutation, evolution in living organisms in terms of macromolecules like DNA, RNA or protein. तो सेल में सबसे पहले जो बाहर होती है सेल वॉल, आउटर कवरिंग, एब्सेंट इन एनिमल सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल और सम बैक्टीरिया. फिर उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है. प्रोटोप्लाज्म भी टू पार्ट में डिवाइडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड उसके अंदर साइटोप्लाज्म. जो सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है उसके फिर अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो ये बाकी अंदर का है स्ट्रक्चर, ये क्या है, साइटोप्लाज्म. फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं और ये सेलेक्टिव माइक्रोमोलेक्यूल्स को या मैक्रोमोलेक्यूल को सेल के अंदर और बाहर आने जाने की इजाज़त देती है या आने जाने देती है अपने थ्रू. और ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है. फिर साइटोप्लाज्म है, वो भी टू पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनेलीज एंड मैट्रिक्स. यहाँ इस साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज. और जो बाकी ये लिक्विड पार्ट बचा ये मैट्रिक्स. फिर ऑर्गेनेलीज भी टू टाइप होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लाइक लाइजोसोम और डबल मेम्ब्रेन बाउंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन इन द सेंटर, यहाँ सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है वो. कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, फिर जिससे जिससे आरएनए बनेगा और फिर प्रोटीन बनेगा बाद में. तो ये पूरी सेल की सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है. एंड साइटोप्लाज्म, साइटोसोल जो है ये, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल साइज एंड शेप. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. लॉन्गेस्ट सेल इज ह्यूमन नर्व सेल.
which is 90 centimeter long. Biggest cell is ostrich's egg. जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है सबसे बड़ा होता है, तो सबको पता होगा, जिसका साइज है 130 mm इंटू 170 mm. The cells of Acetabularia, a unicellular algae about 10 centimeter long. ये यहाँ पे Acetabularia है, ये देखो, ये क्या है, यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. Size of the cell is correlated with its function. Factors restricting cell size. First, nucleoplasmic ratio. DNA content of cell is constant. It can control the activities of cell up to specific size, beyond which control is not possible. So after attaining a specific size, cell stops cell stops growing. जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो एक रेशियो में रहता है, तो जो डीएनए है सेल का वो कांस्टेंट है. तो अगर सेल का साइज बढ़ता जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. तो एक सर्टेन साइज अटेन करने के बाद जो सेल होती है वो बढ़ना, उसका ग्रो करना रुक जाता है. सेकंड है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ सेल इज़ अवेलेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स and oxygen. Some cells are metabolically more active. Large cells also face problem in diffusion of waste from cell to exterior. There is limit on the minimum size also. अगर देखो ज़्यादा बड़ी सेल होगी तो क्या होगा, उसको जो वेस्ट होता है उसको सेल से बाहर ले जाने में डिफ़िकल्टी होगी. और जो सबसे छोटा, ज़्यादा छोटी साइज़ की सेल भी होगी उसे भी डिफ़िकल्टी होगी. लेकिन द स्मॉलेस्ट सेल यहाँ पे देखो, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज़ है 0.1 म्यू in diameter. This figure is showing various cells from the human body. This is smooth muscle cell, ये blood cells, RBCs, concave structure होता है उनका, ये fat cell, ये sperm cell, bone cell, ovum, and ये nerve cell. Longest cell जिसका साइज मैक्सिमम 90 सेंटीमीटर होता है. Now next topic, difference between eukaryotic and prokaryotic cell. एक साइड prokaryotic cell के बारे में दिया है, दूसरी साइड eukaryotic cell, उनके बीच में कंपैरिजन है. Prokaryotic cell. Pro means primitive, karyon means nucleus. Primitive nucleus means न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उनके बीच में कोई क्लियर डिफरेंस नहीं मिलता, तो यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसलिए ये मेन डिफरेंस होता है उनमें. फिर प्रोकैरियोटिक सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर होती है. यूकैरियोटिक सेल आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंट नॉन सेलुलोजिक होती है, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स ओनली. जो यूकैरियोट में सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज. इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, इसीलिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस है इनका. और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में और भी अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है जिसमें आर आर एन ए जिससे राइबोसोम बनता है वो होता है. फिर प्रोकैरियोट्स में सिंगल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और लीनियर होता है. यूकैरियोट्स में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, यानी कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रेजेंट है लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन एब्सेंट होता है. फिर प्रोकैरियोट्स
में जीन्स आर नॉट इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, यानी कि जीन्स के जो होते हैं उनके बीच में आपने पढ़ा होगा इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। तो इनमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका यूज़ बायोटेक्नोलॉजी में होता है वेक्टर के रूप में। एंड यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S टाइप, 70S यानी S उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और जो राइबोसोम होता है वो 2 यूनिट्स में होता है, 2 सब यूनिट्स में प्रेजेंट होता है, एक 50S और 30S। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम 80S टाइप होता है, इसकी 2 सब यूनिट्स होती है, 60S और 40S। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन थ्रू बाइनरी फ्यूजन, यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन थ्रू माइटोसिस और मियोसिस होता है। प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन स्ट्रिक्ट एनारोबिक होता है, यानी वो स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं विदाउट ऑक्सीजन। यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, यानी उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है और यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल, प्लांट्स ये सब आते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें देखो ये स्मॉल ये पिलाई है, ये फ्लैजुला है और ये सेल वॉल है जिसके अंदर की साइटोप्लाज्म है। और देखो न्यूक्लियस की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना। ये जो न्यूक्लियस है वो पूरा बिखरा हुआ सा है, साइटोप्लाज्म फैला हुआ, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, इसलिए क्या है प्रोकैरियोट्स है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। और जो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है उसमें देखो ये न्यूक्लियस है, इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये उसे काट करके बता रखा है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये इन पे मेन डिफरेंस हो गया। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही।